Hello everyone and welcome to our YouTube channel Humanities Adda. I am Amisha Gautam and I have done my graduation from Delhi College of Arts and Commerce, University of Delhi in history, and currently I am doing my masters from Lady Shri Ram College, University of Delhi, and I am also preparing for UPSC Civil Services. So we were doing chapter 1 Constitution, why and how, and so far we have discussed two functions of the Constitution, and in this lecture, we are going to discuss the third function, that is limitations on the power of the government. So just let's move on to that topic, the third function, that is limitations on the powers of the government. This we are going to deal. But before, just we will have a recap of the second function. The second function of a constitution is to specify who has the power to make decision in a society. It decides how the government will be constituted. So in the previous lecture, in the part 2 of this series, we saw कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेसिफाई करता है कि सोसाइटी में कौन डिसाइड करेगा, कौन रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा, किसके हाथ में वो पावर होगी. फॉर इंस्टेंस, in case of India, it is the parliament. And if we talk in particular, it is the government who make the laws and the regulations in the parliament also. So अब जो फंक्शन है वो हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का कि लिमिटेशंस कैसे कॉन्स्टिट्यूशन लाता है on the powers of the government, how it limits the powers of the government. So, but this is clearly not enough. What is not clearly enough? The fact that we have given someone the authority to make laws and regulations on our behalf. Now, suppose you decided who had the authority to make decisions. Suppose we have made a decision that, okay, this authority is going to make decisions. But then this authority passed laws that you thought were patently unfair. But अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये अथॉरिटी ऐसे लॉज बनाने लगेगी जो आपको लगेगा कि ये अनफेयर लॉज हैं. These laws that this authority is making, that this authority is formulating, is not fair. These are unfair. Like for instance, we can take the example of that it prohibited you from practicing your religion, for instance. अगर ये आपको अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोहिबिट कर रही है, या फिर आपको एक पर्टिकुलर कलर के क्लोथ्स पहनने के लिए प्रोहिबिट कर रही है, लाइक इट इज गिवन हियर दैट, और इट enjoined that clothes of a certain color were prohibited, or that you were not free to sing certain songs, or that people who belong to a particular group, that is a particular caste or religion, would always have to serve others and would not be allowed to retain any property. तो कोई ऐसा लॉ बना दे जिससे आपको एक पर्टिकुलर सॉन्ग गाने के लिए यू आर नॉट अलाउड टू फ्री टू सिंग दिस सॉन्ग, एक लॉ में ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, या फिर कोई ऐसा लॉ बन रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ये पर्टिकुलर कास्ट या फिर इस पर्टिकुलर रिलीजन के जो लोग हैं, they will always have to serve the other upper caste or this particular caste, and they will not be allowed to have the property rights and all that. तो ये कुछ ऐसे लॉज हैं जो आपको लगेगा कि these are kind of unfair laws, है ना. तो और that government could arbitrarily arrest someone, या फिर गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ बना दे कि किसी को भी हम कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं अपने मन चाहे जब हमारा मन करे, और that any that only people of a certain skin color would be allowed to draw water from wells, या फिर एक ऐसा लॉ बना दे कि एक पर्टिकुलर स्किन कलर के लोग ही वेल्स से जो है वो वाटर ड्रॉ कर सकते हैं, वाटर पानी निकाल सकते हैं कुएं से. तो इस तरीके के लॉज अगर आपकी अथॉरिटी बनाने लगे तो आपको ऑटोमेटिकली यू विल फील दैट दीज काइंड ऑफ लॉज आर अनफेयर. एंड उसके बाद फिर क्या होगा, अगर कोई लिमिटेशंस नहीं रहेगी गवर्नमेंट पे, तो इस तरीके के लॉज भी आप देख सकते हो कि बन सकते हैं. Now you would obviously think these laws were unjust and unfair. तो आपको लगेगा कि ये इस तरीके के लॉ अगर सोसाइटी में बन रहे हैं तो these laws, they are unjust and unfair. And even though they were passed by a government that had come into existence based on certain procedures, there would be something obviously unjust about the government enacting these laws.
हाउएवर कि ये जो लॉज हैं, ये लॉज एक अथॉरिटी, एक आप बोल सकते हो कि एक लीगल अथॉरिटी बना रही है। ये लॉज जो पास किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट पास कर रही है, दैट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन अ सर्टेन प्रोसीजर। एक सर्टेन प्रोसीजर को फॉलो करके ये जो गवर्नमेंट है आपकी बनी है। फॉर इंस्टेंस अगर हम इंडिया का केस लेते हैं, तो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद आप देखते हो कि किस तरीके से मेजोरिटी जो पार्लियामेंट में मेजोरिटी फॉर्म करता है, वो आपका गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और फिर वो उसके बाद वो लॉज बनाते हैं। तो दो एक पर्टिकुलर एक सर्टेन लीगल प्रोसीजर है फॉलो करने के बाद एक गवर्नमेंट बनी है, उसके बाद ये लॉज बना रहे हैं। बट देन टू there is something unjust about that government, because they are enacting such laws, that laws are unfair and unjust. Okay, so the third function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. तो थर्ड फंक्शन जो गवर्नमेंट का है, सॉरी, द थर्ड फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो है कि कुछ लिमिट सेट करे ये गवर्नमेंट के ऊपर, that government and some limits on what a government can impose on its citizens. तो गवर्नमेंट किस तरीके के लॉज बना के अपने सिटीजन्स के ऊपर इम्पोज कर सकती है, उस पे कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिट बनाती है, एक लिमिट फिक्स करती है। Now these limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. तो ये लिमिट्स कुछ इस तरीके के होते हैं, इतने फंडामेंटल होते हैं कि गवर्नमेंट कभी इसको ट्रेसपास नहीं कर सकती। अदरवाइज अगर इफ दे वुड हैव बीन एबल टू ट्रेसपास दीज लिमिट्स, देन आप देखोगे कि फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा, वो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। It will be all useless of having a constitution. Now uh, now we will see the case of the Indian constitution, कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर किसी और भी कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिट करता है गवर्नमेंट की पावर को। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी वेज, बहुत तरीकों से लिमिट करता है पावर को। Now, the most common way of limiting the power of government is to specify certain fundamental rights that all of us possess as citizens, and which no government can ever be allowed to violate. तो कोई गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को, इफ यू सी द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, and if you read the article 13, आपके जो fundamental rights हैं, they are given in part 3 of the constitution, from article 12 to article 35 आपके fundamental rights आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर ही रहे हो, तो यू विल सी कि दीज आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। एंड उसके बाद आप देखोगे कि जुडिशरी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, इट इज द जुडिशरी दैट डिफेंड्स द फंडामेंटल राइट। बिकॉज अगर बाद में कुछ आपका कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज बना रही है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है आपकी, दैट इज वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट्स, तो उस केस में जुडिशरी स्टेप इन करती है। आपका सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन कर सकता है, आपके हाई कोर्ट स्टेप इन कर सकता है, एंड देन जुडिशरी विल प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, और अगर हम बात करें उसमें भी आर्टिकल 13 की, Article 13 is very important and you should know its significance. Though your chapter on fundamental rights, I'm very sad कि नहीं है इस बार के syllabus में, and I wanted to teach that here. But anyways, we will see some bits and parts में हम उसको देख लेंगे। इसी चैप्टर में अगर हम ट्राई करें तो हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो अगर आप आर्टिकल 13 की बात करो, आर्टिकल 13 में ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 13 it declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void. तो कोई भी लॉ ऐसा जो बन रहा है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा है, उसके अगेंस्ट है, तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। और कौन उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है? दैट इज योर जुडिशरी।
तो जुडिशरी के पास सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, इनके पास एक पावर होती है जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दैट मीन्स कि जुडिशरी कैन रिव्यू द लॉज दैट आर बीइंग फॉर्मुलेटेड बाय द लेजिस्लेचर। तो आपका लेजिस्लेचर जो है वो जिस तरीके जो लॉज बना रहा है, जो आपका पार्लियामेंट जो लॉज फ्रेम कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो उनको पास कर रहे हैं, तो जुडिशरी उनका जुडिशियल रिव्यू उनको रिव्यू कर सकती है। एंड इफ जुडिशरी फाइंड्स एंड किसी को लगा कि यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स का एक कॉन्ट्रडिक्शन है, तो समवन कैन फाइल अ केस, मतलब उसको आप क्लेम कर सकते हो जुडिशरी में जाके, आप उसके अगेंस्ट केस वो कर सकते हो लॉ के, एंड देन जुडिशरी विल स्टेप इन एंड देन इट विल रिव्यू द लॉ कि क्या ये लॉ जो है ये आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग, क्या इसको हम आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग शुड बी डिक्लेयर इट वॉइड because it's violating any of the fundamental rights, right? So this is how your fundamental rights are protected itself by the constitution. And article 13 article 32 is also there, जिसमें आपको रेमेडीज मिल जाती है, रेमेडीज एंड द राइट टू मूव टू द कोर्ट, move to the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights, including the writ. तो अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई भी वायलेट होता है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू दी सुप्रीम कोर्ट। आप सीधा अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। एंड इन यूजुअल केसेस क्या होता है कि सबसे पहले आपको अपने लोअर कोर्ट्स में जाना होता है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। अगर कोई क्रिमिनल केस हुआ, कुछ आपके लीगल राइट्स वायलेट हुए, फॉर इंस्टेंस नॉट द फंडामेंटल राइट्स, एनी अदर लीगल राइट्स अगर आपके वायलेट हो रहे हैं, देन यू कैन मूव टू दी दिस थिंग, यू कैन से आप लोअर कोर्ट में पहले आप मूव कर सकते हो। या फिर कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो आप देखते हो कि लोअर कोर्ट में पहले आप जाते हो, देन यू कैन वहां पे अगर आपको जजमेंट आपके फेवर में नहीं लगी, नहीं तो आप उसके बाद आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हो, एंड देन एट द लास्ट स्टेज you move to the Supreme Court. But in case of your fundamental right, you have the right directly to move to the Supreme Court. तो अपने right के enforcement के लिए, and there are certain writs जिसके बारे में हम नहीं बात करेंगे because it will be then very much out of scope, यहाँ से बहुत ज्यादा आपके लिए हो जाएगा I think। तो इतना हमें इतना ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 32 में देयर आर सर्टेन रेमेडीज जो आपको आपके लिए अवेलेबल है, एंड आप सीधा सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है किसी भी तरीके से। Now, the exact content and interpretation of these rights varies from constitution to constitution. So, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, कौन इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को? हु इज द इंटरप्रेटर? हु सेज कि कौन सा आर्टिकल का क्या मतलब है? इट इज द जुडिशरी। जुडिशरी की सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन के केस में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे जुडिशरी बहुत इस स्फेयर में आप देखोगे तो जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है, एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जुडिशरी जो बोलती है कि इस फंडामेंटल राइट का मतलब ये है, एंड इट हैज बीन चेंजिंग। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स का मतलब डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंग काफी चेंज हुआ है, काफी इवोल्यूशन हुआ है, एंड देर आर मेनी केसेस जो आप देखोगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बट मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस will protect a basic cluster of rights। तो आपके most of the constitutions में आप देखोगे कि आपके basic clusters of rights जो हैं वो protect किए जाते हैं। So हम यहाँ पे देख रहे थे कि limitations कैसे देता है गवर्नमेंट जो है, how it limits the constitution, how it limits the government। So it limits the government by article 13। क्या article 13 में आप देख रहे हो कि कोई ऐसा आपको लॉ बनाना नहीं है that goes against दी फंडामेंटल राइट्स। तो आपके कुछ राइट्स है जो कभी वायलेट नहीं कर सकती गवर्नमेंट, एंड इफ इट वायलेट्स दैट राइट्स, सो द जुडिशरी कैन डिक्लेयर दैट लॉ टू बी नल एंड वॉइड। तो वहां पे जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट फिर एक्टिव हो जाएगा। जुडिशरी रिव्यू करेगी इस लॉ को, एंड उसके बाद उसको डिक्लेयर कर सकती है नल एंड वॉइड, मतलब वो लॉ को खत्म कर सकती है ऑन द बेसिस कि ये वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को। एंड फंडामेंटल राइट्स why they are fundamental? फंडामेंटल इसलिए है बिकॉज आप देख रहे हो कि ये सीधा प्रोटेक्टेड है, गारंटीड है। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ आपके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द फंडामेंटल राइट्स। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर।
Now we were seeing that but most constitution will protect a basic cluster of rights. तो एक बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स आपके मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे कि प्रोटेक्ट किए जाते हैं. नाउ लाइक फॉर इंस्टेंस सिटीजन्स विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड आर्बिट्ररीली एंड फॉर नो रीजन. तो किसी भी मतलब बिना रीजन के या फिर विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी आप बिना मतलब के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते. तो ये एक राइट है आपका, और ये हमें यू कैन सी दैट दिस राइट इज अवेलेबल टू यू इन आर्टिकल 20. Article 20 grants, protection against arbitrary and excessive punishment to an accused person, whether citizen or foreigner or legal person like a company or a corporation. तो आर्टिकल 20 को इफ यू वांट यू कैन रीड इट. यहाँ पे आपको देख रहे हो कि आपको प्रोटेक्शन दी जाती है अरेस्ट और पनिशमेंट के केस में, कि आप मतलब आपको एक्सेसिव सॉरी इट इज इट गिव्स यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पनिशमेंट. तो आपको किसी भी चीज के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा फॉर इंस्टेंस. एंड यू कैन से दैट कि आपका जो पनिशमेंट है, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के बारे में भी एक चीज होती है, बात की जाती है इस आर्टिकल में. I will not go into that because then it will become very difficult for you to understand, but just understand कि आर्बिट्ररी अरेस्ट और पनिशमेंट जो एक तरीके से आप देख सकते हो विदाउट एनी रीजन गवर्नमेंट आपको नहीं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आपको जनरल बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट तो आपको मिल ही जाएगा. आर्टिकल 21 इज इंपॉर्टेंट because it says that no person shall be deprived of his life, that means right to life जो है आपका वो यहाँ पे है, or personal liberty except according to procedure established by law. तो एक procedure established by जो law है वो होना चाहिए. अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है, अगर आपको मेरी लिबर्टी मेरे से छीननी है, then you have to do it according to the procedure established by law. फॉर इंस्टेंस देयर इज अ होल प्रोसीजर कि अगर आपको किसी केस में आपके ऊपर एफआईआर हुआ है तो पुलिस आपको पहले अरेस्ट करती है. देन विद इन 24 आवर्स द पुलिस हैज टू टेक यू टू द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास आपको लेके जाना होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. एंड देन द मैजिस्ट्रेट डिसाइड कि आपको जेल भेजना है या नहीं भेजना है. तो ये पूरा एक प्रोसीजर है. अगर 24 आवर्स के विद इन आपको नहीं लेके जा रहे हैं तो वो फिर आपको एक तरीके से आपका फंडामेंटल राइट्स भी वहां पे भी वायलेट हो रहा है कि why you are keeping the person without the permission of the judiciary. आप इतने ज्यादा टाइम तक कैसे रख रहे हो अपने एक तरीके से पुलिस स्टेशन में. यू आर सपोज टू हैंडल इट जुडिशियल कस्टडी में आपको उनको भेजना होता है. जेल बेसिकली अगर आप देखो तो जुडिशियल कस्टडी होती है कि आपकी जुडिशरी आपको वहां से भेजती है. Now this is one basic limitation upon the power of the government. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये एक बेसिक लिमिटेशन है गवर्नमेंट की एक्सेसिव पावर के ऊपर. बिकॉज अदरवाइज फिर आपके सारे राइट्स अगर इनको अलाउ कर दिया जाए तो इट विल टेक अवे ऑल योर राइट्स. फिर आपको बोल देंगे कि यहाँ पे ये पोस्ट मत करो, यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यू कैन नॉट डू सो, यू कैन नॉट प्रोटेस्ट, यू कैन नॉट डू दैट. तो ये चीज जो है आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट्स आर काइंड ऑफ लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट प्रोवाइड्स द सिटीजंस विद सर्टेन बेसिक राइट्स. नाउ सिटीजंस विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज. तो सिटीजंस को नॉर्मली आप देखोगे कुछ बेसिक लिबर्टीज मिलती हैं. जैसे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, दैट इज अंडर आर्टिकल 19. freedom of conscience is under article 25 in article 25. Then freedom of association is also a part of article 19. In article 19 there are 6 rights. Also go through article 19. आप जितने भी articles मैं आपको बोल रही हूँ, you should go once through that because आपका एक understanding जो है वो better develop हो जाएगी. And then there is another आपका freedom to conduct a trade और बिजनेस एक्सेट्रा. तो ये भी आपका अंडर आर्टिकल 19 ही आता है. एंड इन प्रैक्टिस दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं आप देखोगे कि ये एकदम ऐसे नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है. मतलब इस पे भी आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऐसे भी लगी हुई हैं कुछ. देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑन दैट. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं प्रोविजंस उसमें, अगर आप पढ़ोगे उसको ध्यान से तो. लेकिन यू कैन से कि इमरजेंसी के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये जो राइट्स हैं
इनको लिमिट किया जा सकता है, इट कैन बी नो सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द सर्कमस्टांसेस अंडर विच दीज राइट्स में बी विड्रॉन। तो कुछ इंस्टेंसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी हैं जिस केस में आप देखोगे कि ये राइट्स को विड्रॉ कर लिया जाता है। वो आप जब फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर अगर हम कर रहे होते तो हमने ये किया होता, बट सिंस वी आर नॉट डूइंग इट, तो आपको बस ये याद रखना है कि दीज राइट्स हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। कभी कभी कुछ इंस्टेंसेस में दे हैव टू बी लिमिटेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगानी होती है, या फिर इनको विड्रॉ भी करना पड़ता है इन डिफरेंट सिचुएशंस। फॉर इंस्टेंस अगर हम नेशनल इमरजेंसी का केस लेते हैं, ओके, सो फॉर इंस्टेंस अगर हम इमरजेंसी का केस ले रहे हैं, तो एक्सेप्ट आर्टिकल 20 के अलावा सारे आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं। एंड आर्टिकल 19 इट कैन बी ओनली सस्पेंडेड व्हेन इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो है वो एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण है, मतलब कि बाहर से थ्रेट है, बाहरी आपको थ्रेट है, बाहर से कोई दूसरी कंट्री का थ्रेट है, वॉर का, एक्सटर्नल एग्रेशन का, तभी आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड करेंगे। अदरवाइज इफ इंटरनल रिबेलियन और इंटरनल सिचुएशन है कुछ ऐसी जिसके कारण नेशनल इमरजेंसी लग रही है, आर्टिकल 19 विल नॉट बी सस्पेंडेड। सो दीज आर सम ऑफ द काइंड ऑफ ग्लिम्स है आपके फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर अगर आप देखो, इट्स इटसेल्फ सो मच थिंग्स टू लर्न अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, बट सिंस वी आर नॉट डूइंग इट एनी हाउ, you can go through that chapter if you are interested in reading about it. But however, I think this much is clear, and if there is any doubt, you can ask me in the comment section. I'll try to answer them all. And so, okay, keep studying. And I'm also trying to prepare the notes for this, Polity 11. आपके term 1 के लिए मैं try कर रही हूँ कि notes आपको provide करा दूँ through our page Humanities Adda का जो Instagram पे page है, Instagram handle. You can follow that page, and soon the notes will be available for term 1. You can buy that notes for around, we will you can ask Manisha about that notes regarding आप जो जितनी भी queries होंगी आपकी, आप मनीषा से पूछ लेना। Okay, so thank you so much for watching this video. प्लीज आपको अगर वीडियो अच्छी लगी देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने फ्रेंड्स को भी बोलो, रेकमेंड करो टू वॉच दीज लेक्चर्स इफ यू फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू अगर आपको समझ में आ रही है अच्छी सी चीजें, बिकॉज आई विल ट्राई टू कंप्लीट द टर्म 1 सिलेबस एटलीस्ट फॉर दिस सेशन। तो मैं टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, एंड आई नो इट्स आई एम गोइंग स्लो, और एक लेक्चर में सिर्फ एक ही फंक्शन डिस्कस हो रहा है, बट अंडरस्टैंड दिस कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो पॉलिटी है, it is very complicated and it is very important to understand it, because without understanding you will not remember a single word. मैंने खुद पॉलिटी पढ़ी है, आई रीड पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी फॉर माय प्रिपरेशन, एंड जितनी आप अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है। And as a citizen you should know certain things. That is why this subject is very important. Indian polity, if I say, it is very important. So again, thank you so much for watching. Take care of yourself and keep studying, and do like, share and subscribe the video. Sorry, do like, share and subscribe to our channel. Okay, so bye, take care.